everyone, welcome back. I am Akash and I work as a software engineer in AI. So, which means I work with artificial intelligence, natural language processing. But at times I also need to write SQL queries and work with pandas. इस कोर्स में हम लोग SQL queries देखेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे pandas यूज होता है and how you can visualize your data. But why are you even studying IP? IP पढ़ के आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा? It is that Python is a widely used language. आजकल जितने भी solutions create हो रहे हैं, जितनी भी technologies create हो रही हैं, Python is a very important language in that, and उसी का एक part है pandas and also something called matplotlib. Now these libraries help you understand data, analyze data and plot the data. Along with that, SQL भी एक important चीज़ है जो आपको skills provide करती है, necessary skills provide करती है ताकि एक technology based role में आप अच्छा perform कर सको. So two things that you need to understand from this course are, first is जो coding part है जहाँ पर आप queries लिखोगे, Python code लिखोगे, and the second part relates to computer networking. Now devices are everywhere and internet technology is used to connect these devices together, जिससे आप डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप लोगों से बात कर सकते हो. एंड हाउ ऑल दिस डेटा इज सिक्योर्ड, हाउ ऑल दिस डेटा अफेक्ट्स द सोसाइटी is the second part of this course. So let's quickly look at the marks distribution. So obviously first two units are very important. They are actually of 50 marks out of your total 70 theory marks. तो 50 मार्क आपके हैं डेटा हैंडलिंग के using pandas, data visualization and SQL query writing. The next 20 marks come from your computer networks and societal impacts. But it doesn't mean ये दोनों chapter काफ़ी unimportant है. They are also important but they are theory based. That's why उनकी जो weightage है वो थोड़ी कम है. And the first two units have coding and practicals involved. That's why उनकी जो weightage है वो थोड़ी ज़्यादा है. सेपरेटली प्रैक्टिकल्स में आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, आपको प्रोग्राम्स लिखने हैं, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट करनी है एंड एंड में आपको वाइवा भी देना है. तो ये सब मिला के आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के मिलेंगे. आई होप आपको 30 on 30 मिले. तो की टॉपिक्स फॉर दिस कोर्स वुड बी डेटा हैंडलिंग. डेटा आप कैसे हैंडल करते हो, कौन सी टाइप ऑफ फाइल्स में डेटा स्टोर किया जाता है. तो बेसिकली सीरीज एंड डेटा फ्रेम के कंसेप्ट आप सीखोगे. कैसे आप एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा ट्रांसफ़र करोगे, कैसे pandas आपको हेल्प करता है एक फाइल को रीड करने में. एंड सिमिलरली pandas ऑल्सो हेल्प्स यू विजुअलाइज द इनसाइट्स, बट इसके लिए सेपरेट लाइब्रेरी भी आप यूज़ करोगे विच इज़ कॉल्ड मैटप्लॉटलिब. इसमें आप लाइन प्लॉट्स देखोगे, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स. So this will be the entirety of first unit, mostly related to Python. The second unit relates to DBMS and query writing. तो इसके लिए आपको डेटाबेस कंसेप्ट्स आने चाहिए. तो इट विल बी गुड अगर आप क्लास 11th का जो है कंसेप्ट्स रिवाइज करो. देन यू विल मूव ऑन टू मोर स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज, मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज, जहाँ पर आप फंक्शंस यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करोगे एंड एनालाइज करोगे. सो अर्लियर इन 11th स्टैंडर्ड आप सिर्फ डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे, डेटा को एडिट कर रहे थे, बट in class 12th you will start to analyze data using SQL functions. कैसे आप एवरेज स्कोर निकाल सकते हो, एवरेज रन रेट निकाल सकते हो, एवरेज मार्क्स निकाल सकते हो, टॉप स्कोरर निकाल सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स विच रिलेट टू एनालिसिस ऑफ डेटा. सो दिस विल बी योर सेकेंड यूनिट जहाँ पर आप डेटाबेस के साथ काम करोगे यूजिंग SQL. द थर्ड यूनिट वुड बी टू learn about computer networks. Now we know computers are everywhere, they are connected to each other. So आपको देखना पड़ेगा कि client क्या होता है, server क्या होता है, how is data transmitted using different protocols over the internet. आप network topologies देखोगे. So I just explained one single topology. There are multiple types of topologies present जहाँ पर हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है एंड कैसे कनेक्टेड है, कौन सा डिवाइस मेन है. ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर स्टडिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी, यू आर क्रिएटिंग ऑल दिस सोल्यूशंस, आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो. इन द एंड यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ यू कैन create stuff to
बेनिफिट द सोसाइटी एंड नॉट द अदर वे राउंड. सो आप डिजिटल फुटप्रिंट देखोगे, आप कुछ भी डेटा एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट पे, कुछ भी डेटा क्रिएट कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर समहाउ. हाउ इज़ डेटा प्रोटेक्टेड? आपका डेटा कितना प्राइवेट है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी प्राइवेट है, आप अपना डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, प्लेजरिज्म कैसे अवॉइड कर सकते हो, साइबर क्राइम से कैसे बचेंगे. ऑनलाइन सेफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. कैसे आप अपना डिवाइसेस को, अपने फ़ोन को, अपने पर्सनल आइटम्स को सेफ रख सकते हो फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स. एंड द ब्रॉडर implications ऑफ टेक्नोलॉजी विच रिलेट्स टू एथिक्स. बेसिकली टॉकिंग अबाउट राइट चीज़ें क्या है एंड रॉन्ग चीज़ें क्या है. ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन सोसाइटल इम्पैक्ट्स. सेपरेटली प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क भी आपको करना है. सो प्लीज़ रेफर टू द प्ले लिस्ट फॉर दिस कोर्स ऑन दिस चैनल डेफिनेटली. तो हर एक सेशन के अंदर एक प्रैक्टिकल फाइल मैं शेयर कर दूंगा. यू कैन रेफर टू दैट प्रैक्टिकल फाइल, यू कैन edit it yourself, you can take help from it, and also sometimes I'll be sharing notes for them. Again, the best strategy to study this course is either you can refer to the CBSE notes, but they are never updated. आप स्कूल से पढ़ सकते हो, बट स्कूल में अगेन आई डू नॉट नो हाउ द स्कूल टीचर्स. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब. बट अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेनी है अपने अंदर, you want to learn a lot of things in a short amount of time, making the best effort, I would suggest you use the playlist for this course. Now this playlist has been created specifically by looking at the CBSE syllabus and taking the notes and references from CBSE material. But ऐसा कुछ भी concept extra नहीं है जो आपको पढ़ना है, but everything will be useful for your skill development. तो बेसिकली क्या है, आप सीबीएसई के सिलेबस के थ्रू पढ़ रहे हो, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर फ्यूचर एंडेवर्स.